Hello and good morning to all. Well, today we are about to start the third chapter, that is number system. Fine. Well, till now we have discussed two chapters in our syllabus. The first one was networking and second was Excel. Fine. Today we are about to start our third chapter, that is number system. Where in class 7th we have discussed about the basics of number system, where you have learned the conversion and basic arithmetic. Fine. It means in class 7 we have learned about addition and subtraction of binary numbers, and then we have also discussed about the various types of conversions. Now, for this year in this chapter we have to discuss the following topics. Fine. First of all, we have to discuss about the introduction of number system. Well, in this topic we have to learn about all the four types that we have. Fine. Then secondly, we have to discuss about the conversion. Well, this time in conversion we have to discuss something new. We have two types of conversion that we have to follow. Fine. First we will learn about the conversion of binary fraction to decimal fraction number, and then after that we have to discuss the decimal fraction to binary fraction. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है भाई, what is this fraction number? फाइन. जनरली अगर किसी भी नंबर में डेसिमल्स का यूज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा हुआ है 110.01 या फिर मैंने लिखा हुआ है 99.21. फाइन. अब इन दोनों नंबर्स में यहाँ पर एक डॉट यूज हुआ है, और ये डॉट क्या है? ये डॉट एक फ्रैक्शन है. फाइन. दिस डॉट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर fractional number system. Fine. We cannot call it decimal number system है, but we can simply say it as a fractional number system. Fine. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं decimal और binary fractional numbers का conversion. Fine. Then after this much we have to discuss about the binary addition. Fine. In binary arithmetic we have to discuss about the binary addition, binary subtraction, division and multiplication. Fine. मतलब हम लोग यहाँ पर ऐड करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, फिर हम लोग डिवीजन सीखेंगे नंबर्स को, और हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन. एंड आफ्टर ऑल, after this much we have to learn the last and the most easiest thing, that is complements. Well, here we will learn two types of complements. हम लोग यहाँ पर ones complement और twos complements discuss करने हैं. Fine. So it means in this chapter we have to discuss about two types of complements also, ones complements and twos complements. Fine. Well, in this video today we just have to discuss about the introduction of our number system. आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ number system का introduction part discuss कर रहे हैं, और अपनी next class में, it means that will be on Monday next week. In that class we have to discuss the conversion of binary fraction to decimal fraction. Now let's start. Well, first of all we have to discuss the need of number system, कि आखिरकार number system की requirement क्या है. फाइन. हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये क्यों रिक्वायर्ड होता है भाई कंप्यूटर में. फाइन. बट एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट. फाइन. वेल, फ्रॉम टुडे यू विल नॉट गेट एनी पीडीएफ. फाइन. आज से तुम लोगों को ग्रुप में कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगी चैप्टर नोट्स की. व्हाट यू हैव टू डू इज, ये जितने भी तुम लोग बेटा वीडियो देखते हो, इस सारी वीडियोस में जिस जिस पेज को राइट डाउन करना है उस पेज में ये RW लिखा होगा. फाइन. अब जिस भी पेज में ये RW लिखा हुआ है, दैट पेज यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. जिस भी पेज में ये RW लिखा होगा वो तुम्हारे लिए तुम्हारा नोटबुक वर्क है. इट मीन्स उस पेज को तुम लोग नोटबुक में लिखोगे. फाइन. और जिस पेज में RW नहीं लिखा होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन वाला पेज होगा. उस टॉपिक को तुम लोगों को नोटबुक में कॉपी नहीं करना है. फाइन. वेल, बिकॉज इस पेज में RW लिखा है, वो इट मीन्स ये तुम लोगों की नोटबुक में तुम लोगों को लिखना है. Fine. You will not receive any PDF. You have to note down everything from this video only. Fine. Now let's start. So here we are discussing about the requirement or the need of number system. Fine. Well, when we type something in our computer, we use letters, numbers or symbols. Fine. In general, जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हैं, we generally use letters, numbers or symbols. For example, we use ABC, or we use 1 2 3, or we use symbols like @ dollar, percentage, hash और asterisk. Fine. अब जितने भी ये symbols होते हैं भाई, ये जितने भी symbols हैं, all these are the high level inputs. ये सब के सब क्या है? ये जितने भी symbols मैंने आप बनाए रखे हैं यहाँ पे सभी क्या है? high level language का पार्ट है. ये low level language नहीं है, यानी ये कंप्यूटर को समझ में नहीं आते हैं. Fine. All these symbols cannot be understood by our computer. Fine. Computer can only understand the machine language. कंप्यूटर को सिर्फ और सिर्फ समझ में आती है machine language which is in the form of binary. जो किस फॉर्म में होती है भाई? ये जो machine language होती है in the form of binary, that is 0 and 1. Fine. Now in this binary number system
1 रिप्रेजेंट्स ऑन एंड 0 रिप्रेजेंट्स ऑफ। इस बाइनरी नंबर सिस्टम में 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ, और जनरली यही लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर समझ पाता है। भाई ऐसा क्यों है? ये जो ऑन और ऑफ है ये इलेक्ट्रिक करंट का स्टेट है। फाइन, ये दिखाता है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है कि नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी तो वहां पर स्टेट ऑन होगी, और अगर अवेलेबल नहीं होगी तो वहां पर स्टेट ऑफ होगी। फाइन, इट मीन्स अगर नंबर 1 है मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, और अगर नंबर 0 है मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। फाइन, सो इट मीन्स हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज को, इस बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ सकता है। इट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनी काइंड ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। फाइन, हमारे कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, दैट्स व्हाई वी कन्वर्ट दिस हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। फाइन, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने इस हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग सम ट्रांसलेटर्स विच आर जनरली कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन यानी क्लास 7 में डिस्कस करा था। फाइन, सो the information which we enter in the computer is first converted to the डिजिटल फॉर्म। अब होता क्या है भाई, जनरली कंप्यूटर में हम लोग जो भी लिखते हैं वो किस फॉर्म में है भाई, वो एक डिजिटल फॉर्म में, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में है। तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को पहले डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ही वो प्रोसेसिंग को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना नाम टाइप करा, मैंने लिखा रजत। अब जैसे ही मैंने नाम लिखा, ये जो नेम है मेरा किस फॉर्म में भाई, इट इज इन द हाई लेवल फॉर्म। ये हाई लेवल लैंग्वेज में है, कंप्यूटर ने इसको एज एन इनपुट एक्सेप्ट करा और मुझे शो कर दिया, बट अभी वो उस पर प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। फॉर द प्रोसेसिंग पर्पस उसको मेरे नेम को एक बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट करेगा। लेट सपोज मेरा बाइनरी सीक्वेंस ये है। फाइन, अब जैसे ही उसने इस नेम को बाइनरी सीक्वेंस में कन्वर्ट करा, नाउ इट इज समथिंग व्हिच इज मीनिंगफुल फॉर आवर कंप्यूटर सिस्टम। फाइन, जैसे ही उसने इसको क्या करा, बाइनरी में कन्वर्ट करा, ये क्या हो गया, हमारे कंप्यूटर के लिए एक मीनिंगफुल डेटा बन गया। फाइन, इट मीन्स एवरीथिंग दैट वी आर टाइपिंग इज इन द हाई लेवल लैंग्वेज, और कंप्यूटर को उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना मस्ट है। फाइन, नाउ हमारे कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं है। फाइन, यूजर ने टाइम टू टाइम अलग अलग नंबर सिस्टम्स का यूज करा है कंप्यूटर में। मैंने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, आई हैव जस्ट सेड दैट well users or programmers have created various types of number system for the computer and for general understanding purpose. Fine, so here we have to discuss about all the categories. Fine, not in detail but we just have to read about them once. Fine, now let's discuss about the classification. Fine, आप इस वाले पेज को भी नोट करना है, यहाँ पे देखो RW लिखा हुआ है। Well, here we are discussing about the types of number system which are available for us. यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 4 कैटेगरीज डिस्कस करी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कोड्स होते हैं। Fine, well, we have 4 types of number system. First we have decimal number system, then we have binary, then we have octal and then we have hexadecimal number system. Fine, अब यहाँ पर हर एक नंबर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम लोग एक एक करके अपने सारे नंबर सिस्टम्स का डिस्कशन करते हैं। Now let's start. Well, our first category is decimal number system. अब ये जो decimal number system है, this term decimal means 10. decimal का मतलब होता है 10. 10 का मतलब यहाँ पर हो गया कि भाई इसमें 10 होंगी डिजिट्स। फाइन, इट हैज 10 डिजिट्स। अब यहाँ पे 10 डिजिट्स कौन सी होती हैं भाई, तो इसमें 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर के 9 तक का के नंबर्स। फाइन, इट मींस इट हैज ऑल द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9. फाइन, नाउ इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी हैव 10 यूनिक डिजिट्स दैट इज फ्रॉम 0 to 9 एंड इट हैज अ बेस ऑफ 10. याद रखना, सारे नंबर सिस्टम्स का जो नेम होता है वो उसके बेस और नंबर ऑफ डिजिट्स को डिफाइन करता है। तो भाई इसका बेस यहाँ पर 10 है, इसका मतलब यहाँ पर टोटल 10 डिजिट्स होंगे। फाइन, देन these digits can be used to represent any number in this system. अब इस नंबर सिस्टम में यानी इस डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग इन 10 डिजिट्स के थ्रू किसी भी नंबर को फॉर्म कर सकते हैं। फाइन, इफ आई एम राइटिंग 112 तो भाई 112 इज 0 से लेकर 9 के बीच में इंक्लूड है सारे नंबर्स। 1 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर बेस 10 कंपल्सरी रहेगा। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देन आवर सेकंड नंबर सिस्टम, वेल आवर सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम इज बाइनरी। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है और इसको हम लोग कभी कभी मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। फाइन, नाउ दिस टर्म बाइनरी मीन्स 2. बाइनरी का मतलब होता है 2 और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होती हैं 2 डिजिट्स दैट इज 0 and 1. Fine, in this number system we only have 2 digits that is 0 and 1. Fine, it is made up of 2 digits that is 0 and 1. So the base of this number system is 2. Fine, इस number system का जो base है वो भी क्या है भाई, इसका base भी होता है 2. Fine, well all the digital computers that we have, these computers are able to understand the binary number system. Hence they convert their input to the binary form. फाइन, मतलब जितने भी हम लोग कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, फाइन, जो भी हमारे कंप्यूटर्स हैं इनको सिर्फ और सिर्फ समझ में आती है बाइनरी,
तो ये कंप्यूटर्स क्या करते हैं भाई, जितना भी इनपुट आता है, ये इनपुट जो होता है ये होता है डेसिमल के फॉर्म में, तो ये क्या करते हैं, ये इस डेसिमल वाले इनपुट को बाइनरी में पहले कन्वर्ट करते हैं और फिर समझते हैं कि कंप्यूटर आखिरकार वर्क कैसे कर रहा है। फाइन, हियर वी हैव सम एग्जांपल्स। अब याद रखना भाई, यहाँ पर समझो 0 और 1 का यूज कर सकते हो और कोई नंबर यूज नहीं होगा, और उसका यहाँ पे बेस होगा 2। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। वेल, ऑक्टल का मतलब होता है 8, ऑक्टल का मतलब होता है 8, और यहां पर टोटल होती हैं 8 डिजिट्स, इसका बेस भी होता है 8, और यहां पर डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर के 7, मतलब 0 से लेकर के 7 तक का के जितने भी डिजिट्स हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंडर में। फाइन, और जितने भी नंबर्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं उनमें 0 से लेकर 7 तक का ही डिजिट्स का यूज होगा, एंड सम एग्जांपल्स आर गिवन ओवर दिस साइड। फाइन, सपोज आई एम राइटिंग 2 3 4 5 विद अ बेस ऑफ 8, तो ये क्या हुआ, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का करेक्ट एग्जांपल है। नाउ सपोज आई हैव रिटन 1395। फाइन, तो भाई अगर मैंने इसको लिखा है ऐसे, तो जो 1395 है, यहाँ पर एक नंबर है 9, और ये जो नंबर 9 है ये क्या है, ये ऑक्टल का पार्ट नहीं है, ये ऑक्टल का पार्ट नहीं है, इट मींस ये नंबर इनकरेक्ट हो गया। याद रखना, अगर किसी भी नंबर सिस्टम में, फाइन, किसी भी नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसी डिजिट जो उसके नंबर ऑफ डिजिट्स के बीच में नहीं आती है वो दे दी जाए, तो वो हम लोगों का एक इनकरेक्ट नंबर बन जाता है। फाइन, लेट्स सपोज आई एम राइटिंग 128 विद द बेस ऑफ 8। फाइन, अब यहाँ पर चेक करो कि सारी की सारी डिजिट 0 to 7 में आती है, नहीं आती भाई, 1 आता है, 2 आता है, लेकिन 8 नहीं आता है, हेंस दिस नंबर कैन नॉट बी एनी ऑक्टल नंबर। फाइन, सेम चीज बाइनरी में भी होती है भाई। अगर मैं ऐसे लिखता, मैंने लिखता 112 विद द बेस ऑफ 2, तो यहाँ पर बेस 2 है, मतलब 0 और 1 ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब ये नंबर क्या हो गया, ये इनकरेक्ट नंबर हो गया। फाइन, तो दीज क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड जनरली, ये जनरली एमसीक्यूज में ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है बेटा, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। फाइन, नाउ आवर लास्ट नंबर सिस्टम एंड द मोस्ट interesting one. Fine, our last number system is hexadecimal, where here this term hexadecimal means 16. Fine, hex का मतलब होता है 6, decimal का मतलब होता है 10, और जब दोनों को ऐड करा तो बन गया 16। फाइन, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है 16, और यहाँ पर डिजिट्स या फिर अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो वो भी होते हैं 16। बट एक इंटरेस्टिंग चीज, इन द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वी हैव 10 डिजिट्स। फाइन, यहाँ पर डेसिमल था मतलब 10 डिजिट्स हो गई, और ये जो हेक्सा है ये 6 है। फाइन, तो भाई इसमें क्या होता है, इसमें 10 डिजिट्स होती हैं और साथ ही साथ 6 अल्फाबेट्स होते हैं। फाइन, इट हैज 10 डिजिट्स एंड 6 अल्फाबेट्स। याद रखना यहाँ पर इतनी चीज को बेटा, कि हेक्सा मींस 6, डेसिमल मींस 10, टोटल सम आ गया 16, मतलब यहाँ पर बेस हो गया हमारा 16। टोटल यहाँ पर 16 वैल्यूज आएंगी इसके अंदर में, जिनमें से हमारी 10 वैल्यूज होंगी नंबर के फॉर्म में और 6 वैल्यूज होंगी हमारे अल्फाबेट्स के फॉर्म में। फाइन, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव टू रीड दिस पैराग्राफ। वेल, दिस नंबर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 16 यूनिक alphanumeric values 0 to 9 and A to F, which can be used to represent any number in this system. It has base 16. In this system, the letter A to F have their corresponding numerical values. मतलब यहाँ से A से लेकर के F तक का की हर किसी की वैल्यू होती है। In this number system, A 10 के लिए होता है, B represents 11, C represents 12, D represents 13, E represents 14 and F represents 15. Fine, well this much हम लोगों ने we have already discussed in class 7. It is just a revision of that part. Fine, and some examples are given over this side. कुछ ही examples दिए हुए हैं। Fine, अगर मैंने लिखा है 129 with a base of 16, तो भाई इसमें सारी digits हैं, तो ये करेक्ट नंबर है। अगर मैंने लिखा है ABC, तो ये भी करेक्ट नंबर है। अगर मैंने लिखा है, सपोज करो मैंने लिखा है G12 विद अ बेस ऑफ 16, तो ये जो G है भाई ये इस 6 अल्फाबेट्स के बीच में नहीं आता, इट मींस ये एक इनकरेक्ट नंबर बन गया। फाइन, सिमिलरली इसमें भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑक्टल के तरीके। फाइन, सो इट वाज जस्ट अ जिस्ट और क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल द 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। फाइन, जितने पेजेस में RW लिखा हुआ है बेटा, यू हैव टू नोट डाउन ऑल दोस पेजेस इन योर नोटबुक। फाइन, वेल फॉर दिस वीडियो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। फाइन, टिल देन stay safe, stay healthy and keep learning, and thank you so much for watching this video. Fine, you can comment down all your doubts or queries in the comment section of this video.